alaikum. Today's our topic is George Orwell's essay Politics and the English Language. Overview of the topic is Orwell argues that the English language is in decline due to bad habits, wage writing, and the political manipulation. He connects the corruption of language to the corruption of thought, asserting that clear language is essential for clear thinking and the honest communication. The key arguments which Orwell make: the decline of language. Orwell identifies several bad habits that contribute to the decline of language. Dying metaphors, overused metaphors that have lost their original meaning. Operators or verbal false limbs, phrases that replace simple verbs with wordy construction. Example: make contact with instead of contact. Pretentious diction, using complex words to sound intellectual or authoritative. Meaningless words, abstract terms that lack clear definitions. Example: freedom, democracy. These habits led to vague, imprecise, and often dishonest writing. Second, the connection between language and thought. Orwell argues that language and the thought are interdependent. Sloppy language leads to sloppy thinking, and vice versa. Politicians and writers often use vague language to obscure the truth and manipulate the public opinion. Third is the political language. Political language is particularly prone to abuse, as it is often used to justify atrocities, defend the indefensible, and obscure reality. Orwell provides examples of euphemisms and the doublespeak, such as specification for bombing or elimination of unreliable elements for mass executions. The role of the writer. Writers have a responsibility to use language clearly and honestly. Orwell provides 6 rules for clear writing. 1. Never use metaphor, simile, or other figure of speech which you are used to seeing in print. Never use a long word where a short one will do. Third, if it is possible to cut a word out, always cut it out. 4. Never use the passive where you can use the active. 5. Never use a foreign phrase, a scientific word, or a jargon word if you can think of an everyday English equivalent. 6. Break any of these rules sooner than say anything outright barbarous. The importance of clarity. Clean language is essential for democracy and intellectual freedom. By resisting the corruption of language, individuals can resist the manipulation of thought and preserve truth. The key quotes in this essay are: political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind. If thoughts corrupt language, language can also corrupt thought. The great enemy of clear language is insincerity. So now let me summarize all this essay, that what Orwell want to convey. तो हमने ये पढ़ा कि ऑरवेल का मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि बैड हैबिट्स, वेज राइटिंग और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की वजह से। ऑरवेल जो है वो कनेक्ट कर रहा है करप्शन ऑफ लैंग्वेज को करप्शन ऑफ थॉट से। इसका कहना है कि अगर जो हमने बात की लिटरेचर की, लिटरेचर का मतलब यूँ है कि अपनी थॉट्स को
एक्सप्रेस करना थ्रू राइटिंग। अगर थॉट ही हमारी करप्ट होगी तो हमारी राइटिंग भी करप्ट होगी, और ये सारा असर पड़ेगा लिटरेचर पे। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर है लैंग्वेज हमारी, जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने थॉट्स को, और ये जा रही है लास्ट में राइटिंग की तरफ। तो ऑरवेल का मानना है कि अगर जो लैंग्वेज ठीक होगी, ट्रूथ पे होगी, तो थॉट भी ट्रूथ पे होगी। और ये कहता है कि क्लियर लैंग्वेज जो है ज़रूरी है क्लियर थिंकिंग के लिए और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के लिए। ऑरवेल ने पॉइंट आउट किए हैं कुछ बैड हैबिट्स, बुरी आदतें जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं डिक्लाइन ऑफ लैंग्वेज। किस चीज़ की लैंग्वेज का डिक्लाइन? इंग्लिश लैंग्वेज का। ऑरवेल कहता है कि डाइंग मेटाफर्स की बात करता है। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी सिमिलैरिटीज़ की तरफ यूज़ होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में और सिमिलैरिटीज़ में जो है ना, ये यूज़ हो रहे होते हैं मेटाफर्स। दूसरी ये बात करता है ऑपरेटर्स की, फ्रेजेस दैट रिप्लेस सिंपल वर्ब्स विथ वर्डी कंस्ट्रक्शंस। जैसे इसने एग्जांपल दी है कि हम लफ्ज़ कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ राइटर्स यूज़ करते हैं मेक कॉन्टैक्ट विथ। ऑरवेल का मानना है कि जितनी सिंपल लैंग्वेज होगी उतनी ही उसका डिक्लाइन कम होगा और वो कंट्रीब्यूट करेगी इन अ सोसाइटी। तीसरी बात जो ऑरवेल करता है वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ना यूज़ किए जाए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? ऑरवेल का मानना ये है कि साउंड इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज़हीन दिखाने के लिए, इन अथॉरिटेटिव मैनर, मतलब अपनी पावर को शो करने के लिए कि हम बहुत ज़हीन हैं, तो ये नहीं यूज़ करने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। चौथी बात जो कहता है वो कहता है एब्स्ट्रैक्ट टर्म दैट लैक क्लियर डेफिनेशन। कुछ अल्फाज हैं जैसे कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये इनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। फ्रीडम, किस चीज़ की फ्रीडम? डेमोक्रेसी क्या? तो कहता है ऑरवेल के हैबिट्स लेड टू वेज इम्प्रिसाइज एंड ऑफन डिसऑनेस्ट राइटिंग। तो ये चीज़ें नहीं करनी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं डिक्लाइन ऑफ लैंग्वेज का बायस बन रही हैं। सेकंड पॉइंट है, ऑरवेल ये मानता है कि लैंग्वेज और जो थॉट है वो इंटरडिपेंडेंट है। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि लैंग्वेज आता है लिटरेचर, लिटरेचर में आती है लैंग्वेज, ये एक्सप्रेस करती है थॉट्स को, तो ऑरवेल भी यही कह रहा है कि थॉट्स जो हैं लैंग्वेज के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं। ऑरवेल कहता है कि पॉलिटिशियंस और जो राइटर हैं वो वेग लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि वो ट्रूथ को छुपा सकें और मैनिपुलेट कर सकें पब्लिक ओपिनियन को। थर्ड इज़ द पॉलिटिकल लैंग्वेज। ऑरवेल कहता है कि पॉलिटिकल लैंग्वेज जो है वो प्रॉन टू अब्यूज़ है। इसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल लैंग्वेज जो है जस्टिफाई करती है एट्रॉसिटीज़ को, मतलब किसी पे जुल्म किया गया है या गलत चीज़ की गई है तो उसको जस्टिफाई किया जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में, ताकि रियलिटी को दबाया जा सके। ऑरवेल प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ euphemisms and doublespeak such as specification for bombing or elimination of unreliable elements for mass executions। ऑरवेल का मानना यूँ है कि पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है फॉर मास एग्जीक्यूशंस के लिए। जैसा कि हम न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे
पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट कर रहे होते हैं पब्लिक ओपिनियन को और जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपनी बुराइयों को। फोर्थ पॉइंट है द रोल ऑफ द राइटर। अब राइटर का रोल क्या प्ले हो सकता है फॉर लैंग्वेज। ऑरवेल कहता है कि राइटर के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंग्वेज यूज़ करने की क्लियरली और ऑनेस्ट राइटिंग करे। ऑरवेल कहता है कि 6 रूल्स हैं फॉर क्लियर राइटिंग के नेवर यूज़ अ मेटाफर, ठीक है, नेवर यूज़ अ लॉन्ग वर्ड। थर्ड, ऑरवेल कहता है कि कट कर दें अल्फाज को अगर जो उसकी ज़रूरत नहीं। 4, नेवर यूज़ अ पैसिव वेर यू कैन एक्टिव। पैसिव वॉइस ना यूज़ करें, एक्टिव वॉइस यूज़ करें। 5, नेवर यूज़ अ फॉरेन फ्रेज और साइंटिफिक वर्ड। ऑरवेल का मानना है कि डेली जो इंग्लिश जो है सुनते हैं पढ़ते हैं वो साइंटिफिक वर्ड्स को नहीं जानते और फॉरेन फ्रेजेस को भी नहीं जानते और ना ही किसी जार्गन को जानते हैं। तो सिंपल अल्फाज में राइटिंग की जाए। ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल्स सूनर देन एनीथिंग आउटराइट बार्बरस। और ये रूल्स जो हैं हमें इम्प्लीमेंट करने हैं ताकि हम डिक्लाइन ऑफ लैंग्वेज से बच सकें। 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियरिटी। लैंग्वेज में क्लियरिटी का बहुत रोल है। क्लियर लैंग्वेज इज़ एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। By resisting the corruption of language, individuals can resist manipulation of thought and preserve truth. जितनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी उतनी ही ऑनेस्ट राइटिंग होगी, ऑनेस्ट राइटिंग होगी तो ट्रूथ जो है प्रिवेल करेगा। की कोट्स हैं जो ऑरवेल ने अपने ऐसे में बताए। थैंक यू।